नमस्कार, बीआरजी न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी क्या रही दोपहर के 3 बजे तक की खबरें, आइए देखते हैं। कोरोना के सामने कारगर हथियार वैक्सीनेशन की मुहिम को देश भर में तेज कर दिया गया था, जिसके बाद अब वैक्सीनेशन का आंकड़ा देश में 100 करोड़ के पार हो चुका है और इसी उपलब्धि को देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की ओर से भी वैक्सीनेशन के कार्य में जुड़े हर किसी का धन्यवाद अदा करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी के तहत भाजपा के युवा मोर्चा की ओर से इनऑर्बिट मॉल पर भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के सभी सदस्यों ने केक काटकर हाथ में प्ले कार्ड लेकर बड़ा बैनर बनाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वैक्सीनेशन के कार्य से जुड़े हर किसी का धन्यवाद अदा किया। साथ ही इस मौके पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री भार्गव भाई भट्ट समेत भाजपा के कई अग्रणी नेता और युवा मोर्चा के सभी कार्यकर बड़ी तादाद में उपस्थित रहे। मोदी जी थैंक यू। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी जी जिंदाबाद। આજે જે ગયા અઠવાડિયે 21 ઓક્ટોબરે આ ભારતની અંદર એક અભૂતપૂર્વ સિદ્ધિ હાંસલ કરવામાં આવી કે ભારત દેશે 100 કરોડ લોકોને વેક્સિન આપવાનો લક્ષ્યાંક પૂર્ણ કર્યો અને હજુ એ બીજા ડોઝ માટેની ગતિ અવિરતપણે ચાલુ છે। માનનીય પ્રધાનમંત્રીજીના નેતૃત્વમાં આ દેશે એક અભૂતપૂર્વ કામ કરીને વિશ્વમાં અભૂતપૂર્વ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે। 100 કરોડ એટલે કે અમેરિકાની કુલ જનસંખ્યાના 3 ગણા કરીએ તો 100 કરોડ થાય। યુરોપના બધા દેશોનો સરવાળો કરીએ તો અને એના ટોટલને 2.5 ગણું કરીએ તો 100 કરોડ થાય। આવું એક અભૂતપૂર્વ સિદ્ધિ છે। 25 લાખ હેલ્થ વર્કરો અને લાખો સમાજ સેવક અને ભારતીય જનતા પક્ષના કાર્યકર્તાઓના મદદથી ઘરે ઘરે જઈને જનતાએ પણ અભૂતપૂર્વ સહયોગ આપ્યો છે। પહેલાં તો આ વેક્સિન આ દેશમાં શોધાશે કે કેમ એ શંકા હતી। વેક્સિન શોધાઈ ત્યારે વેક્સિન ચાલશે નહીં એવી શંકા વિપક્ષના લોકોએ કરી હતી, પણ આ બધી શંકાઓનું નિર્મૂલન કરીને ભારતે એક યશસ્વી 100 કરોડનો આંક પાર કર્યો છે। એની તરફ જનતાનો આભાર માનવા, મોદીજીનો આભાર માનવા, હેલ્થ વર્કરોનો આભાર માનવા માટે અમારા યુવા મોરચાના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા આ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો અને જનતાને પણ આ તરફ આભારની લાગણી વ્યક્ત થાય। આ કાર્યક્રમમાં પ્રદેશના અમારા યુવા મોરચાના પદાધિકારી મુકેશભાઈ, અમારા શહેરના મહામંત્રી રાકેશભાઈ, શહેર યુવા મોરચાના પાર્થભાઈ, વોર્ડ 8 અને 9ના સૌ કાર્યકર્તાઓ, યુવા મોરચાના શહેરના પદાધિકારીઓ સૌ હાજર રહ્યા। સાથી કાઉન્સિલર મિત્રો હાજર રહ્યા। વોર્ડ 9માંથી અને 8ના કાઉન્સિલર મિત્રો પણ બધા હાજર રહ્યા। આ સૌ એ જનતા તરફ એક કૃતજ્ઞતાની આભારની લાગણી વ્યક્ત કરી છે એવો આ કાર્યક્રમ હતો। આજે આ કાર્યક્રમ છેલ્લા 10 દિવસથી આપણે યુવા મોરચા દ્વારા સતત ચાલી રહ્યા છે। આખા સમગ્ર દેશમાં 100 કરોડથી વધારે વેક્સિનના ડોઝ જે આપવામાં આવ્યા છે તે માટે ડૉક્ટર્સ, પેરામેડિકલ સ્ટાફ ને જે વેક્સિન સેન્ટર પર કામ કરતી ટીમ સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીના અનેક કાર્યકર્તા જે વેક્સિન સેન્ટર પર સેવા આપે છે અને જે સાયન્ટિસ્ટ જેમને આ વેક્સિન શોધી છે અને આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રી જે આટલું મોટા પ્રમાણમાં 100 કરોડથી વધારે ડોઝ સમગ્ર ભારતમાં તદ્દન મફત આપવામાં આવ્યો છે। વિશ્વનું સૌથી મોટું આ વેક્સિનનું અભિયાન છે અને એની માટે આટલા સારું મેનેજમેન્ટ ને આ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જે થયું છે તે બદલ આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબનો પણ આભાર માનીએ છીએ। સાથે આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત અમારી પ્રદેશના મહામંત્રી શ્રી આદરણીય ભાર્ગવભાઈ ભટ્ટ સાહેબ હતા, સાથે વડોદરા શહેરના મહામંત્રી રાકેશભાઈ સેવક, અમારા યુવા મોરચાના ઉપપ્રમુખ આપણે એટલે ઉજવણી એના માટે કરી છે કે આ જે હા એટલે કેક કાપી છે, 10 કિલોની મોટી કેક કરાવી હતી। સાથે થેન્ક યુ મોદીજીના એક પ્લે કાર્ડ્સ છે અને બલૂન્સ છે
સાથે એક બેનર જે છપાયું છે જેમાં જે લોકોએ સેવા આપી છે આ કોરોના કાળ દરમિયાન એમનો આભાર વ્યક્ત કરતું એક બેનર છે અને આ ભારતીય જનતા પાર્ટી વડોદરા મહાનગરના અધ્યક્ષ ડૉક્ટર વિજયભાઈ શાહ સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ આખો કાર્યક્રમ થાય છે અને અમારા પ્રદેશના યુવા મોરચાના પ્રમુખ પ્રશાંતભાઈ કોરાટ સાહેબના मार्गदर्शन हेठળ આ સમગ્ર કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો। मूक बधिर बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए दिवाली पर्व के मद्देनजर स्वनिर्भर भारत विषय पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत बीआरजी ग्रुप के चेयरपर्सन लताबेन गुप्ता के हाथों करवाई गई। मुक ध्वनि ट्रस्ट की ओर से कारेली बाग में श्री जीडी पटेल बधिर माध्यमिक विद्यालय का संचालन किया जाता है, जिसमें अभ्यास करने वाले सभी मूक बधिर छात्रों की कला को प्रोत्साहित करने के लिए और उनके साथ दीपावली का पर्व मनाने के लिए स्वनिर्भर भारत विषय पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। दरअसल धरोहर फाउंडेशन, श्री एल चैरिटेबल ट्रस्ट और फेयर ट्रेड फोरम इंडिया के सहयोग से वेद ट्रांसक्यूब प्लाजा पर ये आयोजन किया गया, जिसमें सभी मूक बधिर छात्रों की ओर से स्वनिर्भर भारत विषय पर रंगोली तैयार की गई। वैसे इसकी शुरुआत बीआरजी ग्रुप के चेयरपर्सन लताबेन गुप्ता के हाथों करवाई गई। इस मौके पर उपस्थित बीआरजी ग्रुप के चेयरपर्सन लताबेन गुप्ता की ओर से इन सभी बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए शुभकामनाएं दी गई। साथ ही इस मौके पर ट्रस्ट के प्रमुख रिकेश देसाई भी उपस्थित रहे और इस मौके पर विजेताओं को इनाम भी वितरित किए गए। મૂક ધ્વનિ ટ્રસ્ટ દ્વારા આજે આ સ્વભારત રંગોળીનું પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું છે એ ખરેખર ખૂબ જ સુંદર આયોજન કર્યું છે અને એમાં જે દિવ્યાંગ બાળકોએ ભાગ લીધો છે એ સૌને પણ હું ખૂબ જ આશીર્વાદ આપું છું। એમણે ખૂબ સરસ કાર્ય કર્યું છે અને એની સાથે જે પણ સંસ્થાઓ બીજી જોડાઈ છે એ બધા પણ ખૂબ જ બિરદાવવાને લાયક છે। આ બાળકોનું કાર્ય જોઈને લાગે છે કે આ રંગોળી દિવ્યાંગ બાળકોએ કરી જ નહીં હોય। એટલી સુંદર રંગોળી જોઈને એમની કળાને ખૂબ જ માન આપવાનું મન થાય છે। અને વડોદરામાં એવી ઘણી બધી સંસ્થાઓ છે કે જે આ સમાજ સેવાનું કાર્ય કરી રહી છે। બસ આ બધી સંસ્થાઓને પણ હું ખૂબ સન્માનની નજરે જોઈ રહી છું। આ બાળકોને માત્ર એક થોડા સાથ સહકાર અને એક હાથની જરૂર છે, જે છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી બીઆરજી ગ્રુપ આ કાર્ય સફળ બનાવી રહ્યું છે। બીઆરજી ગ્રુપની ઉર્મી દિવ્યાંગ સ્કૂલ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર આ કાર્ય માથે લીધું છે અને 150થી પણ વધારે બાળકોને શિક્ષા સાથે આત્મનિર્ભર બનાવવાનો ભગીરથ પ્રયાસ કરી રહ્યું છે। દિવ્યાંગ બાળકો આજે દેશના ઘણા ઊંચા સ્તરે પહોંચી ગયા છે અને આશા રાખું છું કે બીજા સમાજના બીજી બધી સંસ્થાઓ પણ આ કાર્ય સારી રીતે ઉપાડે અને આપણે શહેરમાં આપણા શહેરમાં કે દેશમાં કોઈ દિવ્યાંગ બાળક રહી જ નહીં। ખરેખર આપણામાં ને દિવ્યાંગ બાળકોમાં કોઈ ફેર છે જ નહીં। કદાચ એમનામાં આપણા કરતાં પણ વધારે શક્તિ છે, પરંતુ એ શક્તિને એ પ્રતિભાને શક્તિને ખાલી ખીલવવાની અને બહાર લાવવાની જરૂર છે। તો એ માટે આપણા દેશના નાગરિકોએ સંસ્થાઓએ ખૂબ મોટો ફાળો આપવો જોઈએ, એમને બહાર લાવીને ખીલવવી જોઈએ અને આપણે સૌ એક જ છે અને દેશને ખૂબ પ્રગતિમાં લાવીએ અને આ સફળ પ્રયાસ મૂક ધ્વનિ ટ્રસ્ટે પણ આ કર્યો છે એ પણ ખરેખર બિરદાવવાને લાયક છે। देश भर में आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम तो आसमान छू ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ रोज़ाना ज़रूरत की चीज़ों के दामों में भी काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से आम जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आम जनता की ओर से बार बार इस मामले विरोध भी प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन फिर भी सरकार की ओर से चीज़ों के दामों को कम करने के मामले में कोई भी फैसला नहीं लिया जा रहा है। ऐसे में केरला के एक युवा मोहम्मद रफ़ी की ओर से अनोखे तरीके से चीज़ों के बढ़ते हुए दामों के सामने विरोध प्रदर्शित किया जा रहा है। दरअसल मोहम्मद रफ़ी ने केरला से साइकिल यात्रा का आयोजन किया है और ये साइकिल यात्रा दिल्ली जाकर रुकेगी। ऐसे में मोहम्मद रफ़ी साइकिल पर
भरूच के पालेज आ पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत कर बढ़ती हुई चीज़ों के दामों के सामने अपना विरोध जताया और साथ ही किसान आंदोलन के मामले में भी सरकार की ओर से अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया गया होने की बात बताई। नमस्ते, मेरा नाम रफ़ी है। केरला से दिल्ली संसद में एक पेडल स्ट्राइक जा रही है साइकिल पे। क्या कर रहे हैं तो ये हमारा इंडिया पे पेट्रोल डीजल एलपीजी को बहुत पैसा वो ज़्यादा है। क्या बोलेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बाद वो मीटिंग करने के बाद क्या बोल रहे हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट वो उसका टैक्स पूरा कम करने के बोल रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का कम करने के बोल रहे हैं। ये दोनों क्या है हमारा इंसान लोगों को परेशान कर रहे हैं। कोई भी पार्टी है तो ये क्या है, मैं युवा कांग्रेस में ये स्ट्रगल करने के आ गया। ये कांग्रेस का गवर्नमेंट है तो बीजेपी का गवर्नमेंट है तो कोई भी गवर्नमेंट है तो हमारा आदमी लोगों को कुछ भी कर सकते हैं तो करेगा। ये दोनों को मीटिंग कर रहे तो मीटिंग ये ओनली फॉर ईटिंग ऐसा चल रहा है। क्या है ना, कमी करने तो स्टेट गवर्नमेंट का और नेशनल गवर्नमेंट का दोनों को एक ही साथ बैठने के बाद पूरा कम करने तो आदमी लोगों का थोड़ा अच्छा से वो क्या है वो पेट्रोल का प्राइस कमी करने तो आएगा। तो बाकी है ना, हमारे किसान लोगों का बहुत मुश्किल में चल रहे हैं। अभी 1 साल हो रहे हैं हमारा किसान लोग दिल्ली का साथ है ना, कितना दिवस बहुत आदमी लोग उधर मर गया। अभी तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट अभी मुंह बंद करने के बाद बैठ रहे। बाकी ना अनएम्प्लॉयमेंट 3 साल को अभी कोरोना वायरस में बहुत परेशान में चल रहे। बहुत आदमी लोगों का ये जॉब है ना कंपनी लोग छोड़ किया। अभी तक ये इतना आदमी लोग क्या कर रहे, कुछ भी खाने का पैसा है कुछ भी सोचा नहीं हमारा गवर्नमेंट का आदमी लोगों के पॉकेट में बहुत ज़्यादा पैसा है। वो पैसा कोई वो छोटा वालों को पैसा नहीं दे रहे। ऐसा तो ये पूरा स्ट्राइक करने तो ये पूरा संदेश करने तो गांव जाके मैं पूरा जगह में जाके ये गवर्नमेंट का प्रॉब्लम इलनेस है ना, इलनेस में बोल रहे। क्या है ना, हमारे अभी तो 2000 किलोमीटर अभी कदम हो रहे, बाकी 1000 का ऊपर है दिल्ली पहुंचने के। संसद में ये हमारा ये स्ट्राइक जाने के टाइम में ये इतना 10,000 आदमी लोगों का मेरा इन्फॉर्मेशन मैं गांव और टाउन के जाके पूरा आदमी लोगों को बोल रही। नेक्स्ट टाइम ये इंडिया में नया एक गवर्नमेंट आएगा, मैं नहीं बोलेगा ये कांग्रेस आएगा, नहीं बोलेगा अच्छा आदमी लोग हमारा इंसान लोगों को कुछ भी करने के आदमी लोग है तो उसका वोट डालने तो पूरा जगह में बोल रहे। ये कांग्रेस से बीजेपी नहीं है, हमारे इंसानों के लिए 135 मिलियन आदमी लोगों के लिए मेरा ये एक स्ट्राइक चल रहा है। ऐसा तो आप लोगों का पूरा सपोर्ट मेरे को नहीं चाहिए, आप लोगों को चाहिए। मैं बोल रहे तो आप लोगों को करने के मैं ये स्ट्राइक कर रहे। ये स्ट्राइक क्या करना है तो हमारे देश के लिए, हमारा देश ऊपर आने के, हमारा इंसानों को ऊपर आने के मेरा स्ट्राइक चल रहे। आप लोगों का सपोर्ट मेरे को चाहिए। रेस्को सर्कल से रेलवे स्टेशन की ओर जा रही सड़क पर विंडसर प्लाजा मौजूद है, जहां से इस वक्त एक दुर्घटना की खबर सामने आई है। दरअसल कल रात को विंडसर प्लाजा के बाहर एक कार चालक नशे की हालत में था, जिसकी वजह से उसने स्टीयरिंग पर से अपना काबू गुमा दिया। ऐसे में उस कार चालक ने एक साइकिल सवार को टक्कर दे दी, जिसके बाद कार डिवाइडर तोड़कर सड़क की दूसरी ओर जा पलटी। वैसे साइकिल सवार को इस दुर्घटना में काफ़ी गंभीर चोट आई है, जिसे अस्पताल में इस वक्त इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। ऐसे में गोत्री पुलिस थाने के पुलिसकर्मियों की ओर से इस मामले में शिकायत दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हालांकि इस वक्त जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक साइकिल सवार का नाम दलपत बारिया है, जबकि कार चालक का नाम गजेंद्र गोस्वामी है। पुलिस आगे की तहकीकात कर रही है।
राजकोट से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल राजकोट के राजपूतपरा में खोडियार चैम्बर्स के दूसरे माले से पिता बेटे की लाश बरामद हुई है। दरअसल पिता बेटे ने आत्महत्या की होने की जानकारी सामने आई है। आर्थिक संकटों की वजह से पिता बेटे ने जहरीली दवाई खाकर खोडियार चैम्बर्स के दूसरे माले पर आत्महत्या कर ली। हालांकि इस बात की जानकारी पुलिस को मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और दोनों की शिनाख्त कर आगे की तहकीकात शुरू भी कर दी गई है। क्रूज ड्रग्स मामले में दोषी आर्यन खान बीते कई वक्त से जेल में बंद था, जिसके बाद लगातार आर्यन खान को जमानत दिलवाने की कोशिश बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान यानी कि आर्यन खान के पिता की ओर से की जा रही थी। ऐसे में आर्यन खान को लगभग 1 महीने के बाद जेल से रिहाई मिल गई और ऐसे में पिता शाहरुख खान आर्यन को लेने आर्थर रोड जेल भी पहुंचे। मन्नत और जेल के बाहर फैंस की भारी भीड़ बीते कई दिनों से लगातार जमा है। ऐसे में आर्यन खान को रिहाई मिलने पर घर पर भी आर्यन खान के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई। ऐसे में ये दृश्य सामने आई है जिसमें दिखाई पड़ रहा है कि आर्यन खान पिता शाहरुख खान के साथ अपने घर मन्नत पहुंच चुके हैं। हालांकि बाहर भारी भीड़ होने की वजह से कार को घर के अंदर जाने में काफ़ी वक्त लगा और दिक्कतें भी हुई, लेकिन अब आखिरकार आर्यन खान अपने घर मन्नत पहुंच चुके हैं। फैंस और मीडिया का भारी हुजूम इस वक्त बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के घर के बाहर मौजूद है। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।